everybody. I'm Kshitij Jain from Sunrise Packaging. I would like to thank Mr. Pradeep for calling us here and honoring us. I just want to suggest something, that we are making a WhatsApp group or we are making an association here. So this EPR problem or the recycling problem is a one big problem. And I would like that we should work towards this problem. We should convince the government, we should convince the NGT, we should convince the CPCB or whatever the local pollution bodies are there. We should all work towards that and find a solution. First of all, nobody is clear. The government is not clear, the pollution departments are not clear, we are not clear what is happening. So I think one of the major steps towards creating this WhatsApp group could be, working towards this recycling problem. And once we are clear, we can, take it to the pollution departments and all the other bodies. Thank you. मैं सर दीपक अग्रवाल, मेरी कंपनी का नाम है श्रीजी पैकेजिंग। इसलिए हम मैन्युफैक्चर नहीं है लेकिन हम ट्रेडर हैं। तो हम छतरी से अपना वो होटल बनवाते हैं लैमिनेट्स वगैरह का। और भैया बाकी समस्या तो कोई नहीं है, समस्या तो ठीक है, हम व्यापारी हैं। तो एक हमारी सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि हम व्यापारी हैं, क्योंकि आज के डेट में गवर्नमेंट की नज़र में सब कुछ बढ़िया है, और एक व्यापारी एक ऐसा है कि बस वो चोर है, बाकी सब कुछ बढ़िया है। जो जमा GST इनकम टैक्स जो जमा करता है वो आदमी बेकार है। तो अगर बाकी हम गवर्नमेंट से लड़ नहीं सकते, लेकिन अपनी आवाज़ एक ऐसे माध्यम से बता सकते हैं जो गवर्नमेंट तक हमारी आवाज़ पहुँचे। बाकी मैं लकी का बहुत शुक्रिया करूँ, उन्होंने हमें यहाँ बुलाया और बुलाने के बाद मैं उनका धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम को आगे भी करते रहेंगे और हम उनका आभारी रहेंगे इसके लिए, और हमें आगे चल के उनके साथ हर लाइन पे चल के साथ देना है उनका। धन्यवाद। Will all the kids and all the ladies, I request all the kids and ladies to please go in that room. We have room beside this, so please go there for the games. Yes, we have the games over there for all of you. Actually, we have to come up on stage Mr. Rajesh Mehla and Mr. Mandeep Singh. If you next, Mr. Rajesh Mehla and Mr. Mandeep Singh. सभी लेडीज से रिक्वेस्ट है कि उनके गेम सेशन जो है वो नेक्स्ट हॉल में हो रहे हैं। बच्चे और लेडीज जो है वो नीति के साथ चले जाए वहाँ पर, क्योंकि गेम सेशन जो है बच्चों का, ये जो आप सेशन देख रहे हैं सवाल जवाबों का, ये थोड़ा लंबा चल रहा है और बहुत हेल्दी डिस्कशन यहाँ पे हो रहा है। तो हम नहीं चाहते कि इसमें जो हमारी लेडीज हैं इनका जो इंटरटेनमेंट पार्ट है वो थोड़ा मिस हो जाए। उसके लिए हमें जो नेक्स्ट हॉल है उसमें हमने एंटरटेनमेंट की व्यवस्था की है, जिसमें दीदी मैम होंगी आपके साथ, मैं भी आऊँगा बीच में। So do you have Mr. Rajesh Mehra and Mr. Mahib Singh? Mr. Naveen Jain from Wellworth Packaging. Hands up. Mr. Naveen Jain. ज़बरदस्त तालियां हो जाए इनके लिए, क्योंकि उत्साह जो है आपका थोड़ा कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हालांकि हम बहुत हेल्दी डिस्कशन में आगे बढ़ गए हैं। कुछ और फ्रेंड्स हमारे बचे हैं जो कि अपनी समस्याएं या फिर अपने सॉल्यूशंस यहाँ पर लेकर आएंगे, और जो इनिशिएटिव प्रदीप सर ने लिया है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे मुकाम तक जा रहा है। Good evening everyone. I am Naveen Jain from Wellworth Packers Private Limited. First of all, I would like to congratulate Pradeep ji and Mosher Industries for creating such a unique platform where all our industry members can put their problems and get a solution. I would like to congratulate him and give a huge round of applause for Pradeep ji. There are a lot of problems our industry is facing,
but we all have to work together to find a solution for that. Like the waste management rules, there is no clarity on that. We should get together and unitely, we should work for it and get some solution from the government. We should make a platform where we can put all our queries and get answers to the problems. Like the technical assistance we want and any other suggestions, everybody can put here and get the answers to them. Thank you. Thank you so much, sir. Next we have Mr. Tushar from Kalpra. Can we have Mr. Tushar on stage? Thank you. जोरदार तालियां सर के लिए। जो फ्रेंड्स अभी भी हमारी बातें सुन के मान के तालियां बजा रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि जब भी फ्रेंड कोई स्टेज पर आता है तो उसको बहुत ज़्यादा जरूरत होती है आपके अटेंशन की, जो कि आप दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir. Next in name we have Mr. Manoj Jain from Jain Flixpack. Can we have Mr. Manoj Jain here on stage? Thank you so much. Ladies and gentlemen, please put your hands together. Good evening, friends. So myself, Manoj Jain from Jain Flixpack. So I've heard everyone, and I found many problems of ours that we are facing every day in our industry. So what I feel is that we have a lot of raw materials lying with us, which is not of my use, but my competitor will be dying for that material. मान लीजिए मेरे पे पॉलिएस्टर आ गया, मेरा साइज अभी उसका यूज नहीं है, दूसरे को वो इमीडिएट चाहिए, तो ऐसा हम काफी अपना रॉ मटेरियल जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। जो मेरे मान लो CPP मैंने 2 टन ऑर्डर दिया, उसने 4 टन भेज दी, 5 टन भेज दी, अब 3 टन मैं उसको रखूंगा तो पता चलेगा उसके टाइम स्कोर हो जाएंगे, तो वो दूसरे को उसको इमीडिएटली चाहिए। तो हम लोग इस तरह से आपस में शेयरिंग कर सकते हैं रॉ मटेरियल्स की, जो पॉलिएस्टर साइज CPP साइज एक दूसरे के साथ हम लोग शेयर कर सकते हैं, रेट्स वगैरह एक अलग बेटर है, लेकिन वो ये कि टाइमली कंज्यूम हो जाएगा। हमारे काफ़ी स्टॉक जो है इस चक्कर में हम लोगों के हर साल खराब हो जाते हैं, तो इस तरह के हम लोग कोई ऐप भी बना सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग ऐसे रॉ मटेरियल अपनी शेयर कर सकते हैं जो सबके काम आ जाएंगे। दूसरी चीज़, अभी हम लोगों को लगता है प्राइसेस की एक बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हम लोग आपस में रॉ मटेरियल्स के प्राइस तो है, लेकिन हमारे जो लैमिनेट्स के प्राइस है, मैंने बहुत से नए लैमिनेटर्स देखे हैं जो इस इंडस्ट्री में तो आ जाते हैं, लेकिन उनको प्राइस की कैलकुलेशन ही नहीं आती। अभी मेरे को एक कंपटीटर मिला, तो जिसमें जो वो रेट कोट कर रहा है वो उसका रॉ मटेरियल का बेसिक प्राइस भी नहीं उसको निकलेगा, लेकिन प्राइस कोट कर देंगे। अब आपके कस्टमर को खराब करके चलते बने, अब उसको यही नहीं पता कितनी प्राइसिंग है, तो ये हमें मतलब इस तरह के हम एक दूसरे को भी इस मामले में हम लोग गाइड कर सकते हैं कि भाई प्राइसिंग का क्या सिस्टम है, किस तरह से तुम्हें शेयरिंग करनी है। वो तो बस किलो में लगाया, तूने 200 बोला तो मेरा 190 है, उसको यही नहीं पता कि कॉस्ट उसके घर में पड़ कितनी थी, इतनी मैथमेटिक ही नहीं आती उनको, डेंसिटी वगैरह ही नहीं पता उनको कि डेंसिटी किस मीडिया का नाम होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करना है, पर स्क्वायर फीट क्या निकलना और केजी प्राइस कैसे बनेगा। मतलब ठीक है, पुराने लैमिनेटर को सब पता, लेकिन जो नए नए होते हैं उन्हें कुछ नहीं पता। आपने पैसा दे दिया, 2-4 कोट ले लिया, लेकिन वो इंडस्ट्री की ऐसी की तैसी मार देती है।
जब तक उनके पैसे खत्म नहीं होते तब तक भाई साहब आपको काम ही नहीं कर सकते। आपका क्लाइंट को खराब करके देवता बनेगा, दूसरे को डूबने 2-4 को साथ में ले जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। उसको लगता है जो आपका कस्टमर है आपको दे रहे हो प्राइस से, उन्हें 10 रुपये 20 रुपये कम दे दिया, भाई साहब आप तो मुझे चूना लगा रहे थे यार इतने दिन से। उसको यही नहीं मतलब उसको कैसे समझाए। तो हम लोगों को मतलब अपने इंडस्ट्री में भी सबको एक सिस्टम बना दे, ये तुम्हारा सिस्टम है, तुम्हें इस तरह से कैलकुलेट करना तो सीख लो यार। क्योंकि अब जब इंडस्ट्री ने लगा लिया, मशीन लगा लिया उसने, तो वो हमारा ढाई तो बन ही गया। सीधी सी बात है, धंधे का भाई तो बन ही गया। तो भाई अब सीख भी लेते काम कैसे करना। तो ये बहुत बड़ी हमारी प्रॉब्लम आती है, इसके बारे में हमें आपस में देखना चाहिए। और जो मुझे जैसे सिलेंडर की बात कर रहे थे, तो सिलेंडर के अंदर होता क्या है कि जैसे हम लोगों ने जॉब्स बनवा ली, लोगों को बोल भी देते हैं भैया तुम्हारे को 8 की फाइल देगा, नहीं देते फाइनली। अब वो कह रहे थे कि हमारी कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व होती है। तो कॉस्ट तो सर ऐसा है कि घर में बैठे आप डिजाइन तो बना नहीं रहे, अगर मैं जॉब दूंगा तो ही तो उस पर काम करूँगा, तो उसकी कॉस्ट तो आपने उसके अंदर डाल ही ली। मतलब आप ये तो कह ही नहीं सकते भाई घर में बैठे फालतू में थोड़ी ना बना रहे हो। जो भी आप काम कर रहे हो उस जॉब के लिए ही कर रहे हैं। अगर मैं प्रिंटिंग कर रहा हूँ तो मैं अल्टीमेटली उसी पॉलिएस्टर के लिए कर रहा हूँ ना, मैं घर में बैठ के पॉलिएस्टर छोड़ने का चाह रहा हूँ। आपका 8 सेक्टर है तो वो उसी के लिए काम कर रहा है, उस पर्टिकुलर जॉब पे काम कर रहा है, तो वो उसकी कॉस्ट उसके अंदर इंक्लूड है। और वो इंडस्ट्री के लिए बड़ी आज की जरूरत है कि आप सब शिफ्ट करते रहते हैं। जैसे पहले मोबाइल नंबर होते थे, एक कंपनी कहती थी भाई मेरा मोबाइल हो गया मैं दूसरे को नहीं दूंगा, तो अब सबके लिए चालू हो गया ना, अब सब एक दूसरे के नंबर अब आप जो है शिफ्ट कर सकते हो। तो ऐसे ही आज की डेट में ये भी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है कि आपको अपनी आर्ट प्रोफाइल भी अपडेट करनी ही चाहिए। उसके लिए मतलब उसके साथ इतनी विजिबिलिटी नहीं रखनी चाहिए। तो ये मैं तुमको सजेस्ट करूँगा। बाकी तो जैसे भी उन्होंने एक इंश्योरेंस प्रीमियम आप लोगों को पता ही नहीं पता है, इस इंडस्ट्री में मेरे ख्याल 4 गुना हो गया, स्पेशली फॉर द प्रिंटिंग इंडस्ट्री। तो उस पर भी हमें कुछ करना चाहिए। तो बहुत अच्छा इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है, तो आगे इसको बढ़ाओ। गुड लक। Thank you so much, sir. Next name we have to come up on stage, Mr. Ashok Sharma from Haber Group. Round of applause for sir. जब एक पकड़ी लगी ना पकड़ना, लेकिन बच गया था तो मतलब बचा सकते हैं। Hello, good evening everyone. I'm Ashok Sharma from Haber Group. I'm senior sales manager. We are into printing and adhesive. I think in our industry we have only one problem: payments and the price war. I think most of the competitors are almost in the price war. Utrex is there. They might be knowing. Everybody is in the price war. That's all is a problem. Okay, thank you. Thank you so much, sir. Next, I'd like to call Mr. Prashant Gupta from Sagar Chemicals. Mr. Prashant Gupta. तालियां होंगे मिस्टर गुप्ता के लिए। थैंक यू सो मच। Hello friends, good evening. I am Prashant Gupta from Sagar Chemicals. We are dealing into chemicals and solvents for the printing and packaging industry and paints industry. And we are mainly based in Kanpur area and Uttarakhand area. So that's it. I would like to appreciate Pradeep sir for the initiative taken. I wish him all the best. Thank you. Thank you so much. Friends, अगर आप में से कोई इनसे पहले भी आके बोलना चाहता है, so you can come on stage. आप मुझसे कह सकते हैं अगर आप पहले बोलना चाहते हैं. Okay. Next name in this series we have. मैं सबको एक बात जरूर कहूँगा कि एक प्लेटफॉर्म है जो सब लोग बैठ के अगर बात सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और सभी लोग अगर सेटल हो जाएंगे अपनी टेबल पे और सब लोगों को मौका मिलेगा कहने का तो काफ़ी अच्छी शेयरिंग होगी। थैंक यू। क्या करना है? Next we have Mr. Hitesh Shivani
from Guru Kripa ROTO Packaging. तालियां हो जाए थोड़ी सी। देखिए इन्होंने सबके लिए तालियां बजाई हैं और ये आई तो इनके लिए आपको तालियां बजाएं। थैंक यू। हो गया तो अवॉइड कर दूंगा मैं। वो आता है जब वाइड चलो तो गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मिस्टर प्रदीप सर को। उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। हम लोग सब इधर आए हैं, ज्वाइन कर रहे हैं और आज शायद सोल्यूशन लेके भी जाएंगे। अभी तक सबने प्रॉब्लम्स बताई हैं जैसा कि मैं देख रहा हूँ, लेकिन अभी तक सोल्यूशन की बात आई नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि अब हम लोग सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ें और जो व्हाट्सएप ग्रुप की बातें हो रही हैं और जो भी सोल्यूशंस हैं जो सोचे गए हैं, जो दिमाग में चल रहे हैं लेकिन अभी तक हम लोगों को बताए नहीं गए, तो उस पर बात की जाए, आगे उस पर फॉलो किया जाए तो अच्छा होगा, बेहतर होगा। थैंक यू। Thank you so much, sir. Next name we have Mr. Raghukul Gupta from Jaipur Classic. Mr. Raghukul Gupta. Okay, Gupta, please. ताली हो जाए इनके लिए। Thank you so much. Hello everyone, myself Raghukul Gupta from Gupta Plastics, Jaipur. First of all, I will kindly appreciate to Mr. Pradeep Gupta for this nice session, and we will like you to appreciate that they could further move towards this step and take a little bit more beneficial step towards this session. We come to know about more of the problems for this industry. But till now, we don't get any solution for this, any of the points. We got major points like environment issues, government EPR issues. Some said they are facing price wars. Some say they have polyester cartels. But none of the solution we have get right now. So I am expecting that at least end of the session we will get some of the solution. Thank you. Thank you so much. Next, I would like to call Mr. Khan on stage from Niti Grevia. As he is approaching to the stage, can we have a round of applause for him, please? Thank you so much. सभी सभा में आए हुए लोगों को मेरा नमस्कार। मैं नसीम खान, निकी ग्रेवियर कंपनी। अभी थोड़ी देर पहले एक सिलेंडर का पता चला था जिसमें फाइल का कुछ टॉपिक आया था। हम लोग जो सिलेंडर की कॉस्ट बेयर करते हैं उसमें बताते हैं पार्टी को, सभी उसमें काउंटिंग करके बताते हैं। किसी को ऐसी तकलीफ है वो हमसे काम कराए, आपकी पेमेंट क्लियर होगी। जिस फाइल की वो फाइल 8 होगी, हम आपको साथ दे सकते हैं। धन्यवाद। Thank you. Next name we have Mr. Dipanshu. ठीक है भाई। Thank you sir. देखिए एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन यही हो गया। मिस्टर दिपांशु भी कुछ लेकर आए हैं। दिपांशु फ्रॉम कैथरनी प्लास्टिक। इतनी जोरदार तालियां हो जाए जिन्होंने भी बजाई वो भी बजाए। Thank you so much. Thank you so much for the applause. और आपने मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया। Myself Dipanshu Sasdeva from Kathan Enterprises. मेरे डैड इस स्ट्रीम में अप्रॉक्सीमेट 30 से पहले से, तो उनकी लेगेसी और उनको फॉलो करते हुए मेरी इंट्यूशंस अलाउ नहीं करती कि मैं किसी के साथ कुछ गलत करूँ। अगर किसी भी पार्टी की फॉर एग्जांपल मेरे पास फाइल पड़ी है और उनका काम सफल हो रहा है मेरी वजह से, चाहे वो डेफिनेटर के डिफ़ॉल्ट पे है, चाहे वो पार्टी के डिफ़ॉल्ट पे है, वो कोई चाहेगा नहीं।
बट हाँ मैं ये चाहता हूँ कि सारी मेरे पास n नंबर्स ऑफ कस्टमर्स हैं, सारी फिंगर्स हमारे हाथ में एक बराबर नहीं है, हर एक की अपनी अपनी पॉसिबिलिटीज़ है, सबकी प्रॉब्लम्स अपनी अपनी है। मेरी अगर किसी कंडीशन किसी लेबोरेटरी से डिसाइड हुई है 2 मंथ्स की, फॉर एग्जाम्पल 60 डेज, अगर उनके एंड से मेरी 60 डेज में पेमेंट क्लियर हो रही है और वो थर्ड पार्टी के बिहाफ पे बिल रेज करवा रहे हैं, वो 90 डेज 120 डेज में एक्सटेंड हो रही है, तो उसके लिए हम सफ़र करते हैं। ठीक है सर, चलिए मैं आपके साथ सेम टेबल शेयर कर रहा हूँ, सेम ड्रिंक शेयर कर रहा हूँ, तो मैं आपसे ये क्वेश्चन पुट करना चाहता हूँ कि अगर आपकी मेरी टर्म 60 डेज़ की है और आप थर्ड पार्टी के बिहाफ पे बिल रेज करवा रहे हैं, वहाँ से मेरी पेमेंट 120 डेज से रिलीज हो रही है, तो उसके लिए तो सब मैं ही कर रहा हूँ सर। और आपकी मेरी, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेरी पाँचों में बराबर नहीं होती सर, ठीक है ना सर। मैं आपके लिए बहुत एलीट कस्टमर्स में काउंट करता हूँ, मैं आपके लिए 24 घंटे मेरा फ़ोन ऑन है, पर जहाँ पर जो लैक होता है जिस कस्टमर्स के एंड पर, उनके लिए सर मैं वैसे ट्रीटमेंट करना पड़ता है मेरा। हाँ फॉर श्योर वो तो वही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही तो चीज़ क्लियर है। आपकी मेरी कंडीशंस अलग है, टेबल्स यहाँ बहुत सारे लेबोरेटरीज हैं, मैं यूजुअली 5 लोग जाता हूँ और मेरी खुशकिस्मती है कि मैं 5-6 अच्छे लेबोरेटरीज को यहाँ पर जानता हूँ। हाँ, यू आर वन ऑफ देम, काके वे इज वन ऑफ देम, क्षितिज जैन फ्रॉम द सनराइज वन ऑफ देम। तो मैं इसलिए यही कहना चाहता हूँ कि एक ऐसा ग्रुप फॉर्म किया जाए, सॉल्यूशन बता रहे हैं, एक ऐसा ग्रुप फॉर्म किया जाए जहाँ पर सिर्फ हमें ऐसा पता लग जाए, इनिशिएट हो जाए किसी के मैसेज के थ्रू कि हाँ ये डिफॉल्टर पार्टी है, जहाँ पर हम थोड़ा सा लैग ना कर पाए। हमें भी क्या सर, हमने तो इसे सर्विस देनी है, यहीं एग्जिस्ट करना है, इस इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करना है, तो उसी के लिए प्लेटफॉर्म प्रदीप गुप्ता जी को अप्लॉज करना चाहता हूँ इस चीज़ के लिए मैं, और आपका भी अप्लॉज चाहता हूँ सबका कि प्रदीप गुप्ता जी एक बिग राउंड ऑफ अप्लॉज थोड़ा प्राइम, उन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है इस चीज़ के लिए। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Mr. Divanshu. Next name we have Mr. Rajesh Kumar from Studio Gate Tracks. Mr. Rajesh Kumar. Mr. Rajesh Kumar. Next name we have in this series Mr. Raj Chawla and Mr. Sushil Agrawal from Natasha Enterprises. Mr. Raj Chawla and Mr. Sushil Agrawal from Natasha Enterprises. Next name we have Mr. Tarun Agarwal from Kumar Industries. Mr. Tarun Agarwal. Mr. Tarun Agarwal from Kumar Industries. Next name we have Mr. Udit Agarwal from Tirupati Flexibles. Okay, and Mr. Samarth Agarwal. Mr. Samarth Agarwal and Mr. Udit Agarwal. Can we have both of you on stage? Mr. Udit Agarwal and Mr. Samarth Agarwal. Can we have you on stage? Sir, please. तालियां बजाएं इनके लिए। Hello everyone, I am Udit Agarwal from Tirupati Flexipec. We are manufacturers of window materials and holographic tubes. जैसा कि आप सबने कहा था अभी कि सबके अलग अलग इशूज़ थे, प्रदीप जी ने बोला, जतिन जी ने बोला, सबने बोला। एक जो इशू हमारी इंडस्ट्री आज क्या आ रहा है वो आज प्राइसिंग का है। हम लोग ठीक है, एवरी कॉम्पिटिशन इज हेल्दी कॉम्पिटिशन, पर आज की डेट में जो लेमिटर्स इंडस्ट्री में हो रहा है अराउंड 320 kg का एवरेज सेल प्राइस हुआ करता है लेमिटर्स का, आज वो गिर के 180 रुपीज़ तक आ चुका है। और वो और लेमिटर्स वगैरह सब मिलके उसको डिक्रीज कर रहे हैं कॉम्पिटिशन के चक्कर में। तो मैंने कहा आप लोग सिर्फ उसकी कोई प्राइस और एक सर्टेन लिमिट तक अच्छी रहती है, उससे ज़्यादा बहुत ही बहुत नुकसान होता है। Can we have Mr. Naveen Jain on stage? Mr. Naveen Jain.
and this is, we have the name of Mr. Anirvan also from Reflex Films Division. Mr. Naveen Jain. Last but not the least name we have Mr. Anirvan and Mrs. Pragati from Uflex Limited Films Division. Okay, if anybody else wants to come on stage and share his views, then you are welcome then. अगर आप में से कोई भी अपने व्यूज रखना चाहे, अपने कोई सोल्यूशन या कोई प्रॉब्लम या फिर जो चीज़ अभी डिस्कस नहीं हुई है, if you want to share this thing, then you can come on stage. Once again, he is coming on stage. एक बार आप पहले आ चुके हैं, but I'm sure आपके पास कुछ solutions होंगे, right? I am having a rough idea about the solution of plastic waste management. मुझे को लगता है कि अगर प्लास्टिक की मेन प्रॉब्लम है लिटरिंग प्लास्टिक की, उसके पीछे रीज़न ये रहता है कि उसकी वैल्यू एक सिंगल पाउच की कोई इतनी नहीं रहती कि लोग उसको इकट्ठा करें। अखबार की रद्दी तो घर पे इकट्ठा हो जाती है, जो 8 रुपये किलो 10 रुपये किलो बिकती है, लेकिन प्लास्टिक इकट्ठा नहीं होता। अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसा स्टेप ले लेती है, जैसे सपोज करें एक टैक्स लग जाता है, एनवायरमेंट टैक्स प्लास्टिक के ऊपर लग जाएगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स प्राइस, कोई भी प्लास्टिक पॉलीथीन होगा उसके ऊपर 10 रुपये का या 20 रुपये का, सपोज के लिए 20 रुपये पर केजी एक टैक्स लग जाता है, एनवायरमेंट का टैक्स लग जाता है किसी भी प्लास्टिक का। और उसी रेट पे जैसे टोस्टर की वेस्ट रहती है, उसकी मार्केट में सेलिंग प्राइस है 6 रुपये किलो 7 रुपये किलो, 20 रुपये किलो का अगर टैक्स लग गया प्लास्टिक पे और 7 रुपये किलो की वेस्ट पे उसको ऐड करके गवर्नमेंट बाय बैक शुरू कर दी उसको, शहर के बाहर हर शहर के बाहर डिपो बन जाएगी, 27 रुपये किलो ये वेस्ट गवर्नमेंट बाय बैक करेगी, तो ये बिग बिजनेस बन जाएगा, बड़ा बिजनेस बन जाएगा। गवर्नमेंट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट देगी कि मैं 5 टन माल ले लूँगा, जो बंदा 5 टन इकट्ठा करके ले तो 27 रुपये किलो गवर्नमेंट बाय बैक करेगी। जो 20 रुपये किलो उन्होंने टैक्स लगाया है, उसी से उन्होंने उसकी पेमेंट कर दी है वेस्ट की, और वो जो उसकी वैल्यू अप्रिशिएट हुई है पाउच की, तो गलियों में नालियों में लिटरिंग नहीं होगी, ब्लॉकेज नहीं होगी, और मसला इसका हल हो जाएगा और रिप्रोसेसिंग के लिए माल पहुँच जाएगा। उसके लिए एक तो इम्पोर्ट उसकी वेस्ट की किसी भी तरह से बैन कर दी जाए गवर्नमेंट की तरफ से, बाहर से कोई वेस्ट आए ना, जो अंदर से बने 20 रुपये किलो उस पर टैक्स लगा, और वही टैक्स हमने जब उसकी रिप्रोसेसिंग में अल्टीमेट कस्टमर को पे कर दिया, मार्केट से कलेक्ट किया और मार्केट को दे दिया, और एक बिजनेस एक नया एस्टेब्लिश हो जाएगा हर मोहल्ले में, दुकान में एक प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन सेंटर इकट्ठे हो जाएंगे, जो 5 टन 2 टन गाड़ी में भरेगा और शहर के बाहर जाके बाजार से 20 रुपये 22 रुपये में खरीदेगा और 27 रुपये में जाकर गवर्नमेंट को भेज देगा। गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कुछ दिया भी नहीं, और एक नया बिजनेस एस्टेब्लिश हो जाता है, और पोल्यूशन भी उससे कम हो जाएगा। ये सोल्यूशन बन सकता है, अगर ये हमारा प्लेटफॉर्म बना है तो इसको एक प्रॉपर स्टेज तक पहुँचाया जाए, ताकि ये एक इसको प्रैक्टिकल शेप दी जा सकती है, क्योंकि ये अपना आइडिया है, लेकिन इस आइडिया में काम किया जाए, इट कैन बी प्रैक्टिकल, और ये सोल्यूशन बन सकता है। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, एक नया आइडिया नए सोल्यूशन के साथ, और मच अप्रिशिएटेड। इसके अलावा अगर सोशल ग्राउंड पे देखा जाए, आजकल बहुत छोटे छोटे वीडियोस बनते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। 30 सेकंड का वीडियो होता है, 1 मिनट का वीडियो होता है, जिसमें कोई भी बंदा या कोई भी लड़की आके एक चीज़ आपके सामने रखते हैं कि ये चीज़ करने से इन्वायरमेंट को ये फायदा होगा। अगर हम ऐसे वीडियोस को प्रमोट करते हैं अपनी इंडस्ट्री के बिहाफ पर, तो इंडस्ट्री की तरफ से एक मैसेज भी जाएगा, लोगों को ये एक अवेयरनेस भी होगी कि आप प्लास्टिक वेस्ट को फेंके नहीं, उसको आप एक सेपरेट जगह पे रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी सर के बाद अगर और कोई ऑन स्टेज आना चाहे, अपने व्यूज शेयर करना चाहता है, तो ये स्टेज आपके लिए ओपन है। Once again, I am inviting you. If somebody wants to speak anything about any solution, any problem, और कोई भी आइडिया हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, then you are most welcome here. We have been through a very nice and very healthy journey, जो कि आज हमने आपके साथ बिताई, और इनिशिएटिव जो कि लिया गया है मिस्टर प्रदीप अग्रवाल जी की तरफ से। मैं प्रदीप जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि ही इज हियर, तो प्लीज कम ऑन स्टेज। प्रदीप सर से मेरी रिक्वेस्ट है, मिस्टर प्रदीप गुप्ता, कैन वी हैव मिस्टर प्रदीप गुप्ता ऑन स्टेज? आपकी तालियों के बीच में अगर वो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो क्योंकि एक इनिशिएटिव लेना, एक आइडिया होता है दिमाग में आते हैं, दिमाग से आइडिया निकल जाते हैं, पता नहीं कब कहाँ गायब हो जाते हैं, पता नहीं लगता, परंतु कोई आइडिया दिमाग में आता है और उसको जब एग्जीक्यूट किया जाता है और ये इस इवेंट की शक्ल ले लेता है, तो उसका मतलब बंदे के अंदर दम है। जब दम है तो इसका मतलब आप उसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, एक आइडिया को हम शेयर कर रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म हमने देखा।
आपसे रिक्वेस्ट है, मिस्टर गुप्ता उनके सन हैं यहाँ पे, उनसे रिक्वेस्ट है कि मिस्टर प्रतीक गुप्ता अगर हमें सुन रहे हैं, इसका नहीं, ओके। और एवरीबडी इज हैप्पी टुडे, जो कि मैंने देखा है, एवरीबडी इज अप्रिशिएटिंग द एफर्ट टेकन बाय मिस्टर गुप्ता, क्योंकि लोगों को जोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। एक ही इंडस्ट्री में रहने वाले लोगों को ये एग्री करना कि आओ मिल के काम करते हैं, क्योंकि सबको एक दूसरे से आगे बढ़ना होता है। उसमें भी ऐसी सिचुएशन के अंदर में सबको एक जगह प्लेटफॉर्म पे लेकर आना और ये बताना कि हम सब लोग मिल के काम करेंगे, ये जो एक जो विनिंग अपॉर्चुनिटी जो सर ने अपने साथ लेकर आए हैं यहाँ पे, वो आप सबके काम आने वाली है। अभी हम वेट कर रहे हैं उनका। और इसके अलावा अगर आप में से कोई भी कुछ कहना चाहे तो अभी आपके पास टाइम है यहाँ पर, क्योंकि अभी जो जर्नी आपके सामने हमने 2-3 घंटे की जो गुजारी है उसमें बहुत सारे डिस्कशन हुए हैं और बहुत हेल्दी डिस्कशन हुए हैं। स्टार्टिंग हमने की थी इंट्रोडक्शन से, छोटी छोटी प्रॉब्लम थी, उसके बाद सोल्यूशन आने चालू हुए, उसके बाद और भी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस, और लास्ट में आपने देखा जैसे कि मिस्टर दीपांशु सचदेवा और कुछ फ्रेंड्स यहाँ पर आके ले गए क्योंकि उनके पास सॉल्यूशंस हैं। सो कैन वी हैव मिस्टर प्रतीक गुप्ता ऑन स्टेज विद योर क्लैपिंग, जोरदार तालियां होनी चाहिए सर के लिए, थोड़ी सी होल्डिंग, थोड़ी सी तालियां हो जाए। प्रदीप सर, थैंक यू सो मच सबको एक बैनर के नीचे लाने के लिए, इकट्ठा करने के लिए। अलग अलग जगह से आप सब लोग आए हैं, शायद सभी एक दूसरे को नहीं जानते हो, बट आज के बाद कोई ये नहीं कहेगा कि मैं उसको नहीं जानता। ये इनिशिएटिव जो लिया सर ने और जो हमें एग्जीक्यूट हुआ है उसके लिए सर को बहुत बहुत बधाई, और सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए आपकी तरफ से। थैंक यू सो मच। आज का हमारा प्रोग्राम रहा, थोड़ी कहीं ना कहीं झगड़े की वजह से संख्या थोड़ी कम रही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो आज मेंबर हमारे आए हैं, खासतौर से लैमिनेट का काम करने वाले, उसमें कम से कम 10 लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा उन्हें समझ आया कि क्या होना चाहिए, और उन 10 की वजह से हमें सोने नहीं मिलेंगे और ये मैसेज पूरे इंडिया में जाएगा, और कहीं ना कहीं हम अपनी बात को कहने में और बात को मनवाने में 100% सक्षम रहेंगे। पहले हम प्रयास करेंगे कि हमारी बात प्यार से मानी जाए, अगर प्यार से नहीं मानी जाएगी तो हम दूसरे जल्दी मनवाने के लिए तैयार रहेंगे। उसमें सभी का सहयोग चाहिए। हमने आज की मेहनत जो आप आए यहाँ पे, कभी बेकार मेहनत आज की नहीं जाने वाली, और इसके लिए आज का दिन सब लैमिनेट में इंडिया के लोग याद रखेंगे कि एक दिन ऐसा था जिस दिन हमने शुरुआत करी थी। इस दुनिया में, इंडिया में क्या है, सबके टाइम बहुत अच्छे भी आते हैं, सबके टाइम बहुत खराब भी आते हैं। जो आदमी तरीके से नहीं चलेगा उसका टाइम बहुत जल्दी खराब आता है, और जो तरीके से चलेगा उसका टाइम अच्छा भी आता है। तो मैं आप सबसे प्रयास करूंगा कि आप सब लोग साथ दें, हम आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, और जो हमें चाहिए वो लेके रहेंगे, ये मैं प्रोमिस करता हूँ। अच्छा, बहुत सारी बातों के बीच में हम एक बात सर से ये पूछेंगे कि देखिए एक ही इंडस्ट्री के हैं, इंडस्ट्री में बूम भी चाहते हैं सर। इतने साल, आज 21 दिसंबर है, और आई एम श्योर जो अगले साल 2020 में 21 दिसंबर होगा वो इससे भी ग्रैंड होगा और उससे भी बड़ा होगा, उससे ज्यादा लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? सर आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि एक ही इंडस्ट्री के इतने सारे लोगों को आपने इकट्ठा किया, इसका राज क्या है? एक्चुअली क्या होता है, कभी भी अगर आदमी को बड़ा होना हो, बड़ा तरक्की करनी हो, बहुत बड़ा बनना हो, तो जब तक वो दूसरों को बड़ा नहीं बनाना है कभी बड़ा नहीं बनता। तो मैं चाहता हूँ कि सभी लोग बहुत ज़्यादा बड़े बने, सबका काम 1,000 टन का हो, 2,000 टन का हो, तो इस बात में हम अपने आप ही बड़े बन जाएंगे जी। बहुत तो अगर बड़ा बनना है तो सबसे पहले दूसरों को बड़ा बनाना ही पड़ेगा। हमारी फैक्ट्री में आदमी को है, कोई भी जानकारी लेते हैं, हम बिल्कुल देते हैं, जानकारी फैक्ट्री को दिखाते हैं, सब काम करते हैं, तो हमें बड़ा बनना है पक्का, तो सबको बड़ा बनाना ही बड़ा बनेगा। क्या बात है, जिस व्यक्ति की इतनी बड़ी सोच होना, वो कितना भी बड़ा लोगों को इकट्ठा कर सकता है, पूरा हजूम खड़ा कर सकता है। थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां फिर से हो जाए यहाँ पर मिस्टर प्रतीक गुप्ता के लिए। इसी के साथ दोस्तों मैं हूँ धीरेन्द्र कुमार थी। आज आपके साथ बहुत गाने गाए, बहुत हमने गिफ्ट्स बांटे, आपको बहुत सारी बातें की,
उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए और मुझे यहाँ पे मौका देने के लिए। आई एम श्योर आपसे फिर कभी मिलेंगे सर। आप आएंगे, आना चाहते हैं? प्लीज सर, प्लीज कम। मैं हूँ जी, प्लीज। आपका गिफ्ट मैंने पहले नहीं कर दिया सर। दिस इज द लास्ट गिफ्ट सर। मैं गुप्ता सर के हाथ से देना था आपको सर। ये गिफ्ट लेना पड़ेगा सर। एक मिनट इधर प्लीज। गुप्ता सर, इन्होंने एक सवाल का जवाब दिया था और हमने ना इनका गिफ्ट रोका हुआ ताकि सबसे लास्ट में देंगे। सो ये गिफ्ट इनको एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सवाल पूछा था जिसमें सब कंफ्यूज हो गए थे और सबसे ज्यादा दिमाग इन्होंने लगाया और ये जीत गए सर। सर स्टेज पर ही आ जाए ताकि एक अच्छा सा फोटो हो जाएगा फेसबुक के लिए। प्लीज आइए, टीम के सभी मेंबर्स आ जाइए जी। थैंक गॉड ये गिफ्ट यहाँ पे रखा हुआ था मैं सर का। सवाल इनसे पूछा था कि शाहरुख खान, सलमान खान और अमिताभ बच्चन किस फिल्म में है बताओ। आप बता सकते हैं कोई? सलमान खान, शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन कौन सी एक फिल्म में काम कर रहे हैं? इन्होंने जवाब दिया सर। क्या जवाब था सर? नो मूवी। कोई भी मूवी ऐसी नहीं। क्या थैंक यू सो मच। फोटोग्राफ हो जाए इनके लिए सामने सामने। सर आप भी स्टेज पर आ जाइए एक बार। चलिए एक इसके बाद गाना अगर आप मेरे साथ गाना चाहें। गिफ्ट अभी मेरे पास थोड़ी सी इधर उधर हो गए हैं। अगर आप गाएंगे तो गिफ्ट जरूर मिल जाएगा सर। एक बार जरा एक आर्क में आ जाइए प्लीज ताकि एक फोटोग्राफ हो जाए। और जो भी मेरे साथ गाना गाना चाहें गा सकते हैं। बहुत गाने की लिस्ट है हमारे पास, बहुत विश्वास करो। एक है इसमें जब कोई बात बिगड़ जाए प्लीज सर। जब कोई बात बिगड़ जाए किसमें है। और मेरे माइक चेंज कर दीजिए। और कौन गाएगा ये गाना? इंग्लिश हिंदी दोनों में गाएंगे जी। आइए, कौन गाता है? जी ओके। चलिए, जब तक आपसे रिक्वेस्ट ये है कि कोई आप में से अभी भी कोई कुछ कहना चाहे तो कह सकते हैं। और जो भी मैम आपसे मैं थैंक यू कहना चाहूँगा। बहुत पेशेंटली आपने पूरा प्रोग्राम देखा, सुना। और अभी मेरे पास कोई गिफ्ट नहीं है, नहीं तो मैं गिफ्ट आपके पेशेंस से आप बैठे हुए ना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हर व्यक्ति के लिए more than 50 guys have come on stage और सब के लिए आपने तालियां बजाई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसका मतलब ये है कि मैं पूरे 100% जो है अलर्ट रही। अगर मेरे को कोई गिफ्ट मिलता है तो मैं आपको जरूर हैंड करके जाऊँगा। प्रदीप गुप्ता सर। बाकी मेरा नाम धीर कुमार है। आप कहीं भी ढूंढिए या फिर गूगल पे लिख दीजिएगा डुप्लीकेट इमरान हाशमी, मैं ही मिलूंगा आपको। ठीक है, यूट्यूब पे लिख दीजिएगा धीर कुमार DHIIR एक ही। ठीक है, आपको मिल जाएगा। बाकी आप इफ यू वांट टू सिंग सॉन्ग, हमारे पास बहुत सारे अलग अलग ट्रैक्स हैं। हेलो इको डाल दो, इसमें इको रिवर्ब सब ऐड कर दो। So this is the last track I'm singing with my friends.
वफादारी की वो रस्में निभाएंगे हम तुम कसमें जिंदगी का जब तक हो अपने बस में वफादारी की वो रस्में निभाएंगे हम तुम कसमें जब तक हो अपने बस में If you miss the train I know you will know that I have gone. You can hear the whistle away from home, away from home, away from home. Away from home, away from home. Tera saath mera hum na Thank you so much.
ladies and gentlemen, अच्छा एक बार ट्राई करो next one sir next अच्छा तीनों को नहीं गिफ्ट एक ही मिलेगा, ठीक है? चलो खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बेटे अब आप आओगे, अब आप वर्जिश मत करो, ठीक है? वो छोटे से चले जाओ, खड़े हो जाओ। दो आउट, ये रेड वाला चल गया, ठीक है? मैं गुप्ता साहब ये बच्चा भी निकल गया, इसको प्राइज दिया जाए। क्या नाम है आपका? आर्यन, वाह क्या बात है, इसको ये प्राइज दे दिया जाए आपकी तरफ से। जिसे लकी कूपन नहीं मिला हो वो हाथ उठा ले, गुप्ता साहब उन्हें वो लकी कूपन देंगे। आपने उसके पीछे अपना नाम या एक साहब से ले लेना, अगर उनको भी नहीं मिला तो डबल नहीं लेना किसी से, ये ध्यान रखना। अच्छा बेटे आपको गिफ्ट मिल गया है, 197 दिखा रहा है। चलिए ये 5
5 बच्चों को एक गेम दोबारा खिला और इस गेम के सर आप जज हैं, सर ये बच्चों को जो मैं गेम कर रहा हूँ उस गेम के आप जज हैं, जो मेरे कहने के मुताबिक नहीं आप बहुत बड़े हो, बाद में बोलूँगा वो छोटे छोटे हो, तो जो बेस्ट करेगा उसको आप विनर बनाएंगे, जिसको आप बोलेंगे ये देख लेना पोता पोती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए बेटा आपको क्या करना है, माइक के अंदर शाउट करना, जोर से, जो अच्छे से शाउट करेगा वो विनर होगा, ठीक है। शाउट समय तक चिल्लाना, ऐसे करना, देखते हैं कौन शाउट अच्छे से करता है। आप नहीं, आप जीत चुके, आप जाओ, नहीं जिसने भेजा गलत भेजा, जो जीत गया उसको दोबारा नहीं। चलिए शुरू करो। ये सायरन बजा दिया, फैक्ट्री की छुट्टी हो गई, इधर आ जाओ, वेरी गुड। अभी जज साहब बोलेंगे तब देखते हैं क्या होता है, वेरी गुड। आप वेरी गुड, ये कर्मचारी वापस आ गए काम पे। आपने कॉफी पी के मुंह साफ नहीं किया, सारी लगी हुई है, आ जाओ। आप इसके दांत पे कीड़ा लगा, वेरी गुड, बहुत सबने बेस्ट किया है। जज साहब को थोड़ी मुश्किल होने वाली है, 2 बच्चों ने अच्छा किया। अच्छा 2 नंबर पे जो है ये ब्लैक जैकेट वाला, यही ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये जीता है। एक बार ये करना, आ जाओ, सब आ जाओ और आपको प्राइज दिया जाएगा, वेरी गुड। ये प्राइज इतना भारी है, ये उठाया जाएगा ऐसे, आप जीते हो, ये जीता ना, चलो शाबाश, बाकी बैठ जाओ, बाद में आपको लगा बैठ जाओ, तालियां जोरदार बजाओ उनके लिए, और एक बार जज साहब के लिए भी बहुत अच्छा डिसीजन दिया है, वेरी गुड। एक गिफ्ट उसको दिया जा सकता है इतनी पब्लिक में, यानी इतने गेस्ट में, जिसके भी मोबाइल में मैक्सिमम फोटो है, इमेजेस गैलरी में जो होती है, जिसके पास सबसे ज्यादा है वो मिले ना मिले आप दिखा दो, जिसके पास सबसे ज्यादा फोटो होगी गैलरी में, आप यहाँ रखने को बताने के लिए कि मेरे मोबाइल में इतनी है, फिर मैं बोलूंगा इतनी वाला आ चुका है, इतने वाला चला जाए। एक बात बोलता हूँ, इससे अगर किसी के पास ज्यादा हो तो उठे, वरना मुझे उम्मीद नहीं है। सर पहले ये वाला सुन लो, पहले ये सुन लो, ये 45,000 इतनी 400, 45,468 है, ताली तो बजाए दो। नहीं सर एक ही फोल्डर में चाहिए, इनकी तो ये देखो, ये इतनी की, ये देखो, ये स्क्रीनशॉट है 487, ये 652 कैमरे की है, अगर इनकी भी जोड़ेंगे तो फिर रहेगी सेल्फी 97, 12,000 व्हाट्सएप, 45,000 कोई है चैलेंज। सर एक सेकंड गिफ्ट लेके जाओ, आप इसके जा रहे हो, क्योंकि मैं अभी 2-3 सेकंड इंतजार करूंगा, हो सकता है कोई हो जाए, है मुझे भी मालूम है, ये पहली बार हुआ है कि पहले ही बंदा जीत गया और कोई नहीं उठा। ताली बजाने के लिए आपका नाम क्या है? मैंने आपको पहले कहीं देखा हुआ है, कहाँ देखा है? फिर तो बैठे हुए देखा होगा, क्योंकि खड़े हुए तो आप इतने सुंदर नहीं लग रहे थे जितने बैठे हुए लग रहे थे। ठीक है निखिल जी, बहुत बहुत मुबारक, आपने ये प्राइज विन किया है। चलिए नेक्स्ट प्राइज उसको जा सकता है जिसकी पॉकेट में जो नोट बंद हो गए, 2 नोट बंद हुए, 500 का और 1000 का, किसी की पॉकेट में 500 या 1000 का नोट पड़ा हो, भले वो नकली हो। सर एक बार ले चुके हो, दोबारा क्यों आ रहे हो? हमारी कोशिश है जो एक बार प्राइज ले चुके हैं हम दोबारा नहीं देंगे। आप ऐसा करो, आप अपनी श्रीमती को भेज दो, ये नोट देंगे, हम उनको दे देंगे, ठीक है ना गुप्ता साहब? ये दोबारा क्यों ले रहे हैं? आपके पास है नोट? हाँ सॉरी आप मत भेजना, एक नोट उधर से आ गया, एक नोट आ गया उधर से, वेरी गुड। ये तो पहले क्यों नहीं उठे आप? पता है निकल में अंदर जीत चुका, तो आपको पहले उठना चाहिए। नोट तो दिखाओ, जेब को जड़ लिया, ये वाकई सही में 500 का नोट है और असली है, आपका गिफ्ट बनता है, ये रहा आपका गिफ्ट। हमारे पास बहुत सारी यहाँ महिलाएं बैठी हैं। पहले मैं आपको बता दूं, हमारे जैन गुप्ता साहब ओशो प्रेमी,
ये बात सुन के ओशो को कौन जानता है, पढ़ा हुआ है किसी को ओशो को? ने खाओ का निर्देश पता ही ओशो हो गए। ये सोच रहा हमारे हिस्ट्री के टीचर ओशो अच्छा अपना ही क्या करता है, फिर तो अच्छा बोर्ड पे लिखा, बोर्ड पे नाम पढ़ लिया ओशो से पता चलेगा आपने ओशो को पढ़ा हुआ है। और किसने आपका ये मेरा खुद का मानना है क्योंकि मैं ओशो का सन्यासी हूँ और मेरे ख्याल से 12-15 साल पहले हमने सन्यास भी लिया था। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि जिनसे सन्यास गुप्ता जी ने लिया था माँ धर्मज्योति से, जिसने अपना पूरा जीवन ओशो के नाम पे कुर्बान कर दिया, उन्हीं से मुझे देखा मिला था। अब ये मुझे थोड़ा सा डाउट है कि इन्होंने पहले लिया या मैंने पहले लिया। हमारी जब घर पर मुलाकात हुई, जब इन्होंने अपना कार्ड दिया उसमें ओशो लिखा था, मैं ऐसे उछला था जैसे मेंढक को करंट लग रहा था, मतलब खुशी से कि एक सिर्फ ओशो ही ऐसे सदगुरु है जिनका नाम लेते ही इंसान 10,000 किलोमीटर भी दूर होगा तो 1 सेकंड में जुड़ जाएगा। बाकी आप किसी का भी नाम लेते रहोगे तो शायद ऐसा ना हो। भगवान बुद्ध के बारे में जितना प्यारा ओशो ने बोला, हालांकि उन्होंने तो सबके बारे में बोला, कोई संत नहीं छोड़ा, ऐसे ऐसे संतों के नाम लिए जिनको हम जानते भी नहीं थे, जैसे दादू। हम दादू को नहीं जानते थे, लेकिन दादू के बारे में बहुत अच्छा बोला है। सभी संतों के बारे में, नानक के बारे में जितनी अच्छी व्याख्या की है, जपजी साहब, एक ओंकार सतनाम, इतना कुछ बोला है। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने ये सुना कि हमारे गुप्ता साहब ओशो प्रेमी है। तो बहरहाल चलने दो, इनका ड्राइवर है जगबीर, मेरे ख्याल से हम 1.5 घंटा साथ रहे, सुबह मुझे 6 बजे लेने आया। तो मुझे ऐसे ही पूछ पड़ा कि बजाज साहब कलाकार बने कब थे? तो मैंने कहा भाई मुझे तीसरी जमात में मेरे टीचर ने श्राप दिया था और मैं चौथी में बन गया था। बोला ऐसा क्या हुआ? मैंने कहा उसने मेरे से एक प्रश्न पूछा था तीसरी कक्षा में, मैंने उसका जो जवाब दिया उसी में टीचर ने बोला बेटा तो बड़ा होकर कबड्डी बनेगा। बोला जी ऐसा क्या पूछा था? मैंने कहा उसने मेरे से पूछा था कि लड़की शब्द पर कौन सी ई की मात्रा लगती है? तो मैंने जवाब दिया था मास्टर जी पहले लड़की दिखाओ। छोटी लड़की होगी तो छोटी की मात्रा, बड़ी होगी तो बड़ी की मात्रा। वेरी सिंपल। आगे से पूछ रहा कितना पढ़े हो? मैंने कहा 10th क्लास, लगातार 3 बार बड़े अच्छे नंबरों से फेल। बोला जी नंबर कितने आते थे? मैंने कहा जी बराबर। कहता बराबर नंबर तो किसी के नहीं होते थे। मैंने कहा मेरे होते थे। बोला कैसे? मैंने कहा जो प्रश्न पत्रों में मेरे से सवाल पूछे जाते थे वो मेरी समझ के बाहर होते थे, और जो मेरी तरफ से उत्तर लिखे जाते थे वो उनकी समझ से बाहर होते थे। हो गया ना बराबर? बोला एक आध उदाहरण दो। मैंने कहा कितने लोग? मेरे से पूछा गया 1 और 1 2 होता है, आप 3 करके बताओ। मैंने नीचे लिख दिया इनकी शादी करके 1 साल इंतजार करो, ये 3 हो जाएंगे। फिर पूछा गया हॉस्पिटल किसे कहते हैं? मैंने बड़ी शान से बड़े साफ अक्षर में लिखा कि धरती से स्वर्ग लोक के जाने में कि रास्ते में जो टोल नाका पड़ता है उसे हॉस्पिटल कहते हैं। एक बड़ा टेढ़ा सवाल है, धरती पर इसका कोई जवाब नहीं दे पाया, लेकिन मैंने दिया था। लिखा था कि पहले मुर्गी आई कि अंडा? मैंने लिखा पहले आई नमकीन, फिर आई बर्फ, फिर सोडा, फिर पानी, फिर बोतल। बोतल के आती पत्नी आई और घर गई। देखो इस बच्चे ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, तो कोई इकट्ठा है। बेटा इसलिए आप पहला प्राइज जीत गए। वेरी गुड भाई, तालियां पड़ती है इसके लिए। बहुत ये बिल्कुल मेरे जैसे बनाने के लिए बड़ा हो, हर बात का जवाब है इसके पास। फिर एक सवाल पूछा गया कि महाभारत के युद्ध का ठोस कारण लिखो। अब ये पहला युद्ध है धरती पे जो बहुत से कारणों से हुआ। एक भी कारण इसमें से हटा दिया जाता तो शायद ये युद्ध नहीं होता। किसी बच्चे ने लिखा कि दुर्योधन अगर अपनी जिद छोड़ देता तो ये युद्ध नहीं होता। किसी बच्चे ने लिखा कि भीष्म पितामह अपनी प्रतिज्ञा अगर तोड़ देते तो ये युद्ध नहीं होता। किसी बच्चे ने लिखा कि भगवान श्री कृष्ण खुद चाहते तो ये युद्ध नहीं होता। अच्छा, लेकिन सबसे ठीक और सटीक उत्तर था वो मेरा। क्यों? सबसे इंटेलिजेंट खोपड़ी में क्लास। मैंने लिखा उस समय अगर पुलिस होती तो ये युद्ध नहीं होता। क्यों? 5 इनके फैलाती, 5 इनके फैलाती और शक्ति मामा को यहाँ सेंटर में बैठाती, सारी रात उससे चाय बनवाती, इनको पिलवाती, खुद पीती, सुबह पतीली भी उससे बनवाती। तो क्या ये दोनों था? और इस छोटे बच्चे ने फौरन कह दिया सारे पढ़ जाते क्या?
कह रहा पुलिस सारे हथियार छीन लेती, उन पे हथियार होते नहीं, और वो भी लगाते ना आशुका छोड़ देते, उन पे पानी के फव्वारे मारते, घटों तो छोटे बता सकते थे, वो बहुत मजा आया। पुलिस होती तो यही करती, उन पे आशुका छोड़ देती, यही होता है। अच्छा, अब आगे चलते हैं, हम प्राइस फिर से बढ़ते हैं। यहाँ पर किसी मर्द के यानी जेंट्स के बाल सबसे छोटे हो तो उसके लिए भी एक प्राइस है। ये कोशिश करना कि जो पहले प्राइस ले चुका हो वो ट्राई भी मत करना, अगर वो मेरे हिसाब से फिट बैठता हो तो भी, क्योंकि हमारी कोशिश है हमारे पास जितने गिफ्ट है हम सब तक पहुंचा दें। सबसे छोटे बाल किस मर्द के हैं वो उठ के आए, बच्चे के नहीं चाहिए मुझे, मर्द के चाहिए, पूछ आ चुकी है उसके, उठ जाए नहीं, छोटे बाल चाहिए, टांट पे होने पूरे चाहिए। आपकी कितना है? आना पड़ेगा, बच्चा नहीं चलेगा। क्या कितना है? अभी मर्द बना नहीं है, कोई मर्द कहेगा नहीं, चाइल्ड में लिखेगा, रेलवे में फोकट में जाएगा ये। गोयल साहब, अगर आपको लगता है कि आपके पास सबसे छोटे हैं तो भेजो ना। नहीं सर, मैं नापूंगा, जिसके छोटे होंगे उसको मिलेगा प्राइज। प्राइज देने में उतना मजा नहीं आता जितना ना देने में आता है। कंपटीशन तो यही है ना, कंपटीशन से जीती गई चीज। गोयल साहब, आपके तो शायद आप बैठोगे घबरा गए, कितने छोटे हैं? मैं अभी नापूंगा, मेरे पास उस तरह है, ये देखो ये उंगली जहाँ खत्म हुए, ये मैंने ये ठीक, ये सर क्या फायदा? हाँ, इनसे बहुत कम बड़े हैं लेकिन बड़े हैं। तो हमारे गुप्ता साहब ने डिसाइड किया कि अगर हम दोनों को प्राइज दे दें, फर्स्ट और सेकंड, तो चलेगा शायद। नहीं सर, नहीं, विनर तो विनर ही, आपका बड़प्पन है, आप कह रहे हैं, लेकिन हमारी नजर में सेकंड तो आप हैं, लड़ाई में गए, ठीक है? तो आप ये देखिए, हमारे पास ये जो सेकंड आता है उसके लिए ये वाला प्राइज है, और फर्स्ट वाले के लिए ये वाला प्राइज है, ठीक है? ताली बजा दीजिए एक बार के लिए। अब आप में से कोई ऐसी महिला जो ये सोचती है कि मेरे बाल सबसे लंबे हैं, वो आ सकती है यहाँ पर प्राइज लेने के लिए। अब मैं दो नहीं दूंगा, ये तो हमें गोयल साहब का सम्मान करना पड़ा। जो महिला ये समझती है कि मेरे बाल सबसे लंबे हैं, उसके लिए भी प्राइज। गोयल साहब के हाथ में लकी कूपन की स्लिप है रेड कलर की, जिससे नहीं मिली हो वो उन्हें बुला के, सॉरी गुप्ता साहब के पास, उन्हें बुला के वो स्लिप ले सकता है, उसमें अपने नाम टेलीफोन नंबर भर के उन्हें वापस दे सकता है। एक मैडम आई है जो ये कह रही है कि मेरे बाल अभी तक सबसे लंबे हैं, कोई और उठने की हिम्मत करेगी तो आ जाए। मैडम उठिए आप, अगर आपको लगता है आपको आपके लंबे नहीं है तो भाई गोयल साहब अगर छोटे बाल से जीत सकते हैं, उतार दो। हाँ, ये भी बात ठीक है। एक अंगूठी खत्म किया, एक अंगूठी शायद किसी की खो गई है, वो इस समय गुप्ता साहब के पास है। मैडम जरा, हाँ वेरी गुड, आप ऐसे ही उठ रही थी, आपके बाल भी फिलहाल लंबे हैं, आप साथ हो जाएगा, इससे कभी पता चलेगा कि मेरी कितनी दूर की आंख है, कमजोर है, साथ बिल्कुल साथ। मैडम अभी तक तो इन्हीं के लंबे हैं जिनके आपने कहे थे। अब इनको कोई चैलेंज करने आ रही है, कोई लेडी, आप मिसेस गोयल, वेरी गुड, कमाल है। देखिए, परिवार में दो प्राइज चले गए, छोटे के चक्कर में, एक बड़े के चक्कर में। हमने तो दे रही है, हमारी तो पूरी कोशिश है यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं, बड़े हैं, सबको प्राइज मिले। इतनी संख्या में हम प्राइज लाए भी हैं, वो मैं जैसे भी दूंगा वो मेरी मर्जी है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहेगी सब तक पहुंचे। आप आएंगे बात के लिए लंबे नहीं है, खड़े तो हो जाएगा, कई बार पता ही नहीं होता, पता ही नहीं चलता कितने बड़े बाल खड़े हो जाएंगे साथ, तभी पता चलेगा। आगे पीछे नहीं, साथ कैसे खड़े हो गए? ठीक कहा आपने, आपके छोटे। चलिए मिसेस गोयल के लिए एक बार ताली बजा दीजिए, कोई और नहीं आया। देख सकते हो आप कितने प्राइज हैं, कितने प्राइज हैं, हमने सबको दे दिए। तो ये हमारी कोशिश सर आप दे दीजिए, वेरी गुड। अब आप में से कोई भी, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, जिसने पूरे कपड़े एक ही कलर के पहने, यानी एक ही कपड़े का वो सारा सिस्टम हो,
ऊपर का भी नीचे का भी सब एक ही रंग हो या एक ही कपड़े का हो। जैसे ब्लैक ड्रेस है तो ब्लैक, व्हाइट है तो व्हाइट, नीली है तो नीली, पीली है तो पीली, हरी है तो हरी, सारी ड्रेस सेम होनी चाहिए। है कोई? हाँ सर बिल्कुल आप आ सकते हैं, बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा कपड़े मत बदलो। आप कह रहे थे मैं भी बदल गया भाई 2 मिनट में आया, मैंने कहा मत बदलो, इसमें मुझे प्राइज है। ये मैंने प्राइज वाली बात अपने मन को बोली थी और कपड़े वाली बात अपने मन को बोली थी। थैंक यू, ताली बजा दीजिए इनके लिए। एक आदमी और एक औरत कहीं पर खड़े थे, एक आदमी एक औरत कहीं पर खड़े थे, तो उस आदमी का दोस्त आ गया, वो उस औरत को नहीं जानता। उसने उस आदमी से पूछा कि ये औरत कौन है, तो उसने जो जवाब दिया बोला कि इसकी सास और मेरी सास आपस में माँ बेटी है। तो बताइए उस औरत का उस मर्द के साथ क्या रिश्ता था? जो ये रिश्ता बता देगा उसको प्राइज दे दिया जाएगा। मैडम ये बात है, अगर पहले समझ नहीं आई हो तो दोबारा बोल देता हूं। आदमी और औरत खड़े थे, आदमी का दोस्त आया, क्या पता आपका आंसर सही हो, क्या पता आपका गलत हो, फिर इन्हें ढूंढना पड़ेगा। दोस्त ने पूछा ये लड़की ये औरत ये कौन है? बोला इसकी सास और मेरी सास आपस में माँ बेटी है। तो उन दोनों का रिश्ता आपस में क्या है? ये मैडम आंसर में क्या है, शायद इनसे पहले से पता था। मुझे बड़ा दुख है कि आपने मैंने बड़ी दूर से बुलाया, आंसर आप कर रहा हूँ। इन्होंने बोला हस्बैंड वाइफ, वो कैसा दोस्त है जिसकी वाइफ बनी जाता था? आप बताओगे? बताओ। वो तेरा बना है, ये आपसे भी 3 कदम आगे। मेरे ख्याल से पहले सबको समझ आ गई, समझिए दोबारा बोल देता हूँ। एक समझिए मैं और मेरे साथ एक लड़की खड़ी है या औरत खड़ी है, हमें क्या पता क्या है, मतलब वाइफ नहीं है ये पक्का है, क्योंकि मैंने उनको वापस भेजा था, कोई बात होगी। मेरा दोस्त आया, वो मेरे से पूछने लगा ये लड़की जो खड़ी थी औरत खड़ी थी कौन है तेरी? तो मैंने उसको कहा इसकी सास और मेरी सास आपस में माँ बेटी है। तो मेरी को क्या लगी? आपको सीधा ये बता दें कि मेरी को क्या लगी। वो मैडम लगी तो ये करके शायद पहुंच जाए। आपने आंसर दे रहा हो, शायद आंसर इसको किसी और ने बताया, ये आगे मेरे पास बहन यहाँ पे इसी ने बोला था प्राइज जा चुका होगा, बहन नहीं होती। मुझे एक बात समझ नहीं आती, नहीं पता, मैं बता देता हूँ। वो उसकी पुत्र बहू थी, यानी उसकी बहू, उस बहू की सास मेरी सास हुई, उस बहू की सास मेरी पत्नी हो गई ना। वो कह रही है, मैं कह रहा हूँ कि इसकी सास और मेरी सास आपस में माँ बेटी है। तो मेरी सास कौन हुई? मेरी बीवी की पत्नी, मेरी बीवी की माँ। नहीं खोला हूँ। मेरी सास कौन हुई? मान लीजिए मेरे पास ये खड़ी है, एक कह रहा है मुझे बहू बना दिया, ये मान लीजिए मेरी बहू है। तो इसकी सास कौन हुई? मेरी वाली बीवी, और मेरी सास कौन सी हुई? मेरी बीवी की माँ। तो दोनों आपस में माँ बेटी हो गई। तो ये मेरी बहू हुई। शुक्रिया, ये एक प्राइज मेरा हो गया। तो साहब आंसर मैंने दिया, ये प्राइज मेरा हो गया। मुझे पता लगा से देना होगा, मर्जी आती है। चलिए नेक्स्ट, किसी ने जिनको पहले प्राइज मिल चुके हैं, अगर वो मेरी इस बात से फिट बैठते हो तो प्लीज प्राइज ले लेना, क्योंकि हम पहले हो चुके हैं। हमारी कोशिश है यहाँ पर हम प्राइज सबको दें। किसी ने भी इधर बना दूं व्हाइट, वहाँ तो कुछ है ही नहीं। रेड बनियान पहन रखी हो किसी मेल ने, रेड बनियान, तो हाँ आज ये बनियान है या टी शर्ट है, ये ध्यान रखना। अगर ये टी शर्ट है तो प्राइज मिलेगा। अच्छा ये बनियान, देखो गुप्ता साहब कह रहे हो मुझे कोई इतराज नहीं है, सर इसे फोल्ड कर दो, रेड कलर पर आ जाए। एक बार दिखा, वैसे मैं देखता हूँ ये है तो टी शर्ट, लेकिन आप बनियान पहन समझ के पहन रहे हो। गुप्ता जी ने बनियान मान लिया तो आप क्या कर सकते हैं?
आपको एक बड़ी हैरानी की बात बताता हूँ। अभी दिवाली वाले दिन मेरे साला साहब यानी मेरे पत्नी का भाई मेरे घर आया, मिठाई लेके, तो मेरी पत्नी पलंग पे लेटी हुई थी, बड़ी खुशी से चहक गई। सबको पता होगा जब आपके साले आते हैं या बीवियों के भाई आते हैं तो चहक बदल जाती है। तो एकदम चहक के बोली मेरा भाई आया, सेब तो काट दो। मैंने अपनी लाइफ में कभी टिंडा नहीं काटा। ये देख सकते हो निशान अभी भी है, ये गया ही नहीं, यहाँ से चल गई मेरी उंगली पहले मार। एक मटर के दाने जितना खून निकला गोयल साहब, जितना पिंडे में होगा उतना निकलेगा। तो इतना सा खून देख के मेरा साला घबरा गया, मुझे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने बिठाते ही इंजेक्शन भरना चालू कर दिया। मैंने उसके हाथ जोड़े, मैंने कहा डॉक्टर साहब आप मुझे कड़वी से कड़वी दवाई पिला दीजिए, एक हफ्ते की जगह 10 दिन पिला दीजिए, इंजेक्शन मत लगाइए। बोला क्यों? मैंने कहा मुझे सुई चुभती है। वो बोला मेरी सुई चुभने का आपको अगर पता भी चल जाए तो मेरी फीस मत देना। मैंने कहा इतना भरोसा, चलो लगाओ। 4 सेकंड बाद बोला तो इंजेक्शन लग गया। मैंने कहा है लग गया भाई, तो लग गया, मुझे तो पता नहीं चला। कह रहा ये अपनी खासियत है। मैंने कहा कोई बात नहीं डॉक्टर, तेरी इज्जत बच गई, मेरी जान बच गई। कितने पैसे हुए? बोला 150 रुपए। मैंने पर्स खोला, अंदर सारे नोट गिने। मैंने कहा इंजेक्शन तो मेरे पर्स में ठोक दिया है, पता मुझे खा लगा है। अभी मेरे ख्याल 12-15 दिन पुरानी बात है। मुझे ना लोग इंडियन समझते हैं अगर मैं बात चल रहा है तो बॉम्बे गया तो हमारे साधु उनसे साधु होते थे। मैं तो चाह रहा हूँ ये वहाँ कुछ चल नहीं रहा। हाँ वहाँ चल नहीं रहा है, और इसी का ही वाइड कर रहा है, जो ये खोल रहा है इसी का वाइड मार। वो मेरे पास आके हाँ इसी की वाइड प्लान से आया था अपनी तरफ से तो लूट लूट कर बच्चा मैं तुम्हें आत्मज्ञान दे सकता हूँ। मैंने कहा क्या बोला होती है आत्मज्ञान? आत्मा के बारे में बता सकता हूँ। मैंने कहा अच्छा चल तू ये बता मेरी बीवी के अंदर कितने आत्मा है? बोला एक। मैंने कहा दे 4 आत्मा तो उसके कीड़ा लगा हुआ है, 4 तो मेन गेट पे बैठी है, और जितनी उसके सर में झूम ना मैं जानता हूँ उसको लगाई गलत बंदा पकड़ चुका। तू मेरी तारीफ में क्या कर रहा है? बच्चा तू नहीं जानता तेरे माथे पे कौन सी रेखा है? मैंने कौन सी है भाई? कह रहा वो वाली जो भगवान शंकर के माथे पे। मैंने कहा शंकर तेरा फूफा है, तू कहाँ देख के आया उसको भाई? मुझे तो तूने देख लिया, चल उसको कहाँ देखा है? वो बिलक गया, बोला ये तो मेरी दूसरी चाल भी बेकार है। एकदम ऐसा हिला कि वो सारी राख मेरे ऊपर गिरना चालू हो गई। बोला दे कुछ तो दे। मैंने कहा मुझे राख गिरेगा, मैं राख को कोई चुड़ैल ना छोड़ जाए मुझे। मैंने डर के मारा फिर उसको 50 का नोट दे दिया, यानी मैं ही था 50 का नोट लेते ही कह रहा मांग बच्चा क्या मांगता है? मैंने कहा मेरे पैसे वापस करो। आज संडे बंद होता है, पता चल गया ना? छोटे बच्चे मन के सच्चे होते हैं, कल नहीं जा सकती है। इनके मन में कोई कपट नहीं होता। कपट कहाँ से चालू होता है? जब इन्हें पता चलता है कि फलां बात पे मार पड़ती है। और मैं सच बताऊं हमारे देश के नेता कितना भी चाहे भ्रष्टाचार जिंदगी में खत्म नहीं कर सकते, आप चाहो तो खत्म कर सकते हो। शुरुआत बच्चों से करनी पड़ेगी। नया का अब देखो भ्रष्टाचार फैलता कैसे? बच्चा यार मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मम्मी कह रही है चल आया तो चॉकलेट दूंगी बड़ी भाई। ये आपने भ्रष्टाचार का पहला इंजेक्शन ठोक दिया। फिर आप कहते हो अगर तू फर्स्ट आया क्लास में तो तुझे साइकिल मिलेगी, मोहल्ले में सबसे पहली बार। ये आपने उसको ठोका दूसरा इंजेक्शन भ्रष्टाचार का। फिर आप कहते हो अच्छा अगर तूने 12th बड़े अच्छे नंबर से पास की तो पीली वाली काली मोटरसाइकिल मेरा बात होगी। ये तीसरा इंजेक्शन ठोका। आप जा मैं सच कह रहा हूँ बच्चा एक बार कहे ना मुझे स्कूल नहीं जाना, कार में एक ठोकर छोटी जल्दी कोई मेरा तैयार करना मम्मी मुझे तो जाना चाहिए नहीं चाहिए। यहाँ से होगा भ्रष्टाचार का, वरना नहीं हो सकता क्योंकि इससे इंस्पेक्टर बनना है। इसको पता चल रहा है भाई कुछ लेके साइन करूंगा। जब स्कूल कुछ लेके गया है तो साइन कुछ लेके ये मानते हो कि नहीं मानते? मैं तो कहता हूँ बड़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो कि ऐसा काम ही नहीं करते जिसमें भ्रष्टाचार करना पड़े, क्योंकि आप ऑलरेडी बिजनेसमैन क्या सोचना तू तो डायरेक्ट डील हो जाती है ग्राहक से भाई तो यहाँ भ्रष्टाचार की कोई हाँ वो बात अलग है कि आपका कोई करनी कोई आपका सर्वेंट कोई आपसे धोखा कर रहा है वो बात अलग है, लेकिन भ्रष्टाचार कम से कम बिजनेसमैन नहीं होता। ये जो मैं जानता हूँ जो कोई बुरा मत मानना मेरी बात का, जो सरकारी अधिकारी होते हैं ये चांस शुरू होते हैं वही कर पाते हैं क्योंकि उनको चांस मिलता है। किस के लिए? अब डॉक्टर कहते हैं इतनी फीस क्यों लेते बोलते जब हम डॉक्टर बनते हैं हमारा खर्चा होता है। अनीता को अनीता से दिल्ली में भी नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक प्राइज में अच्छा वो तो चला गया। अब किस महिला के मुंडे सबसे लंबे हैं यहाँ नहीं होता है, मैं काम एक प्राइज उसको भी चला गया। एक बार मैंने ऐसे बोला कि भाई जिस महिला के बाल सबसे लंबे हैं उसको प्राइज दूंगा। एक बड़ी बॉय मैंने तो आज ही कटवाया। मैंने कहा जाके ले आओ, मैंने मिला के दे दूंगा ठीक लगे तो प्राइज दे दूंगा। पता नहीं
कैसे पता? आपको टाइम दिया 1 घंटे का, इतनी दूरी होगी, ये क्या हुआ? 4 से कटवा के आया, वो झूठ बोल रही है सर। चलो किसके फुंडे कांटे सबसे लंबे हैं वो आया और प्राइज है। कहाँ पे? खड़े हो जाओ, डर के रहो, कोई कह रहा पहले के तो 10-11 बजे जा नाखून बेटे, फिर नाखून आप प्राइज ले और बड़े करके आओगे तो मिल पर आके रहो। देखो जरा इससे लंबे हैं किसी के फुंडे, पहले ही उन्होंने मना करना शुरू कर दिया कि ये तो पहले ही अभी मैं आपको बोल तो दिया, अभी बात कर रहा हूँ मैं, इसमें कोई और उठेगा, कंगाल ही आ गया, कोई नहीं, ऐसे नहीं होता है, पक्का था चलिए गिफ्ट जाता है इस महीने में गुप्ता साहब का ताली बजाने एक बार जोरदार। बच्चे बन के सच्चे सारी जग के आके तारे। स्कूल में एक मास्टर अपनी बीवी से लड़के आ गया, चौथे पीरियड में इतनी भूख लगी, चौथा पीरियड 11:11:30 होता है, इतनी भूख लगी पागल हो गया, बच्चे का खाना खा गया और उसको धीरे से बोल रहे हैं मत बोलिए मैंने तेरा खाना खाया। बच्चा क्या कह रहा है, कोई बात नहीं मास्टर मैं बोल दूंगा मेरा खाना कुत्ता खा गया। समझते नहीं हो बात को, इस टाइम किस भर रहा हूँ, एक मास्टर के क्लास में ज्ञान बांट रहा था, बच्चों से कहना था गाय हमारी माता है, ऐसा शरारती बच्चा खिड़की की बात भाग रहा है, उसको डांट रहा है, क्या देगा करा कुछ नहीं है, आपकी माता की बेटे को क्या पड़ेगा, इतनी हवा चलती है, जाके बचा बेटा क्या तो रहे। एक बच्चे को मास्टर ने उठाया, पूछा 5 रुपए 4% के हिसाब से अगर मैं तेरे बाप को 1 लाख रुपए दे दूं तो 1 साल के बाद तेरा बाप मुझे कितने पैसे वापस करेगा। बच्चा बोला कुछ नहीं, कम से कम 7,000 मास्टर बोला कोई हिसाब नहीं जानता, बच्चा कह रहा है तो मेरे बाप को नहीं जानता, समझ लिया। एक बच्चे से पूछा कल स्कूल के गया, बोला कि कैसे आटा खाना हमारे फैसले में बच जाते हैं, तो मास्टर बोला इसमें तो हैरानी की बात है, बोला अच्छा तू देख बारिश आती है वो किसी तरह से वहाँ पे ये बच्चे किसी को छोड़ देंगे। एक बच्चा मेरे पीछे पड़ गया, एक बार कह रहा है कल अमेरिकन, मैंने कहा तू 1.5 घंटे से मैं हिंदी बोल रहा हूँ, अभी तक तेरे को पता नहीं चला मैं इंडियन, वो चला गया आधे घंटे में फिर आ गया, अंकल सच में मैंने दूसरे अपने पापा को दिखाया था, मेरा पापा कह रहा दोबारा पूछ लिया, मैंने कहा आधे घंटे में निकल जाऊंगा, तो ऐसा ना मेरा चश्मा लिया अपने बाप को लगा, शायद उसको 2 घंटे ठीक दिख रहा है, वो फिर चला गया 10 मिनट बाद आइसक्रीम चाटता हुआ बीच रास्ते से आ, मैंने कहा ये पूरी रात मेरा दिमाग चाटेगा, इसको झूठ बोल के टाल देता हूँ, आया क्या अंकल, मैंने कहा हाँ मेरी तरफ, पता क्या बोला, लगते तो लगा भी नहीं। एक दादी घर में गई, मतलब दादी अपने बेटे को 2.5 साल बाद मिल गई, तो इतना सा होता उसके पीछे पड़ गया, क्या कह रहा है तुम नाटक तब अपने बच्चों करते हैं क्या, दादी बोली क्या बकवास कर रहा है, मैंने कहा आज तक नाटक देखा भी नहीं है, मैंने जिससे कह रहा था दादी सुबह मम्मी कहती थी पापा से घर में आएंगे वो यहाँ पर लोग ड्रामे होंगे, कुछ कह रहा लगता है आपने शायद हो जा। ठीक है मैं खुद जाऊँ या ये वाला सवाल आप पूछो मैं कैसे हो गया प्लीज, आपको पता लग गया मुझे कहा जा रहा पानी ज़्यादा मिल गया था। तुम यहाँ को दे रहे जमा करा मत कर, अभी आके पिटूंगा प्रोग्राम तो आप जानते हैं बहुत बढ़िया है, और खासतौर पे ये सोचते हुए ये पहला प्रोग्राम था, ये बहुत ही बढ़िया है, और आगे जो ये है कि प्लेटफॉर्म बना है क्योंकि ये है कि खाने के लिए आ रहा हूँ शाम को, आप करेंगे तो चलेगा, आप ये चलेगा, आप बिल्कुल बनूंगा मैं आपको फोन दे क्या फोन कर दिए नेहा कहाँ है, नेहा को दे क्या बकवास कर रही है, हाँ बोलो बेटा मैं बाद में बात करूँ फ्री होके, है ना हम काम कर रहे हैं, इसको बोल के चुप हो जाए, संजय गोस्वामी सिविल डिफेंस इंजीनियरिंग टेप दे देना इनको जरा टेप
amount of diamond, amount of plastic diamond, तो सब चीज़ के लिए हम उसको कम करा लेते हैं। टेप दे दीजिए जरा